हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में दैट आई स्टार्टेड द फर्श से अर्श तक सीरीज, यानी कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस माइंड मैप के थ्रू, मैप्स के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं इस सेशन में। नाउ देयर विल बी इन टोटल 5 to 6 क्लासेस और 4 to 5 क्लासेस, टोटल आपकी 4 से 5 क्लासेस होंगी इस सीरीज में। एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द निमोनिक्स ऑल्सो, हाउ टू रिमेंबर सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी ओशन, सो मेनी रिवर्स। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ निमोनिक्स। प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और निमोनिक्स के साथ पढ़ेंगे, सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। आपके लिए रिवाइज करना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस अर्श से फर्श से अर्श तक सीरीज़। ये फर्श से अर्श तक की सीरीज स्टार्ट करते हैं। थोड़े अलग अलग नाम होते हैं तो इससे क्या होता है, आप भी थोड़े जग जाते हो, वरना क्या होता है पूरी क्लास में बच्चे सो रहे होते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। Now before we start the session, here's a small announcement for all of you that Unacademy has started new batches for UPSC CSE 2021, 22 and 23 aspirants. That's going to start from 18th of Jan 2021. ये जो batches हैं, नए batches start किए गए हैं 2021, 2022, even for 2023 aspirants. These new batches are starting from 18th of January. So what are you going to get in these batches? If you're preparing for 6 months, that means for 2021. So for you also there are 3 batches that have been launched. If you are an English medium student, you can enroll in the English medium batch. If you are a Hindi medium student, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप लक्ष्य 2021 के बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट if you are a bilingual student, that means you understand both Hindi and English, you can again enroll in Expedition 2021 batch. Okay, Ultimate GS batch is for English medium students, Lakshya 2021 is for Hindi medium students, and Expedition 2021 bilingual. Okay, and again these batches are starting from 18th of Jan. Now India's top educators are taking the classes over here. I am also taking ancient, medieval, modern Indian history batches, and soon I'm going to take the essay classes as well. तो अगर आप चाहें आप फटाफट से आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, because the link is given below in the description box. Before the batch starts, today is 13th, 5 days are remaining, so make your decision, right? Be quick enough to select your seat in the batch. 18th Jan is the time. Then for 2022 aspirants also in the same manner, 3 batches are launched, Hindi, English and bilingual, starting from 18th. Same applies to 2023 aspirants. And there is another important feature that we have added this year, that is the NCERT batches. NCERT we all know is very crucial when it comes to your preliminary examination. हमने देखा है 2020 में हिस्ट्री में NCERTs पूरा टारगेट किया है, in geography and history and polity the NCERTs have been targeted. So NCERTs are gaining importance, right? So we are launching NCERT batches also again from 18th of Jan itself, ठीक है। 18th Jan onwards आपके NCERT batch start हो जाएंगे। Again Hindi, English and bilingual batches have been launched. Here you will be getting the PDF study material, NCERT complete coverage, summary, notes, mind maps and prelims test series with analysis. So over here you can get your subscription today and you can use this code Sharma20 to get 10% off on your subscription. आपके सब्सक्रिप्शन पर आपको easily 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हो Sharma20, ठीक है। So link is given below in the description box. You can click on the link, subscribe today and बुक योर सीट। जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि समय है कम और तैयारी है ज़्यादा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट निमोनिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज कंट्रीज सराउंडिंग द ब्लैक सी। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी वी हैव स्टडीड अ लिटिल बिट अबाउट ब्लैक सी इन द लास्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम ब्लैक सी को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके ऊपर इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको याद रखना है। नाउ इन प्रीलिम्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, दे कैन आस्क यू टू अरेंज द कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दे कैन आस्क यू टू अरेंज द कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको लिस्ट ऑफ कंट्रीज दे देंगे और बोलेंगे ब्लैक सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। सो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डिटरमाइन व्हाट आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। सेकंड यू हैव टू अरेंज देम, यू हैव टू रिमेंबर देयर लोकेशन। ओके, सो हियर वी हैव अ ट्रिक टू रिमेंबर। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ईटन द बर्गर। आप सभी ने बर्गर तो खाया होगा अच्छे से, ठीक है, दबा के खाया होगा मैकडॉनल्ड्स का। तो हियर द ट्रिक इज बर्गर टी, ठीक है। नाउ बर्गर टी मीन्स B for Bulgaria, U for Ukraine, R for Russia, then we have
G for Georgia, अगेन R for Romania and T for Turkey. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे here you will see we have Bulgaria. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बल्गेरिया है एंड बल्गेरिया इज इन, कहाँ पर है ये, वेस्ट में है. ठीक है, ऑन दी ब्लैक सी के वेस्ट में. देन वी हैव यूक्रेन. यूक्रेन आप देखोगे ये नॉर्थ में है, इट इज़ ऑन दी नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी. देन वी हैव रशिया विच इज़ ऑन दी ईस्ट ऑफ ब्लैक सी. देन वी हैव जॉर्जिया. ठीक है, जॉर्जिया अगेन इट इज़ ऑन दी ईस्ट ओनली. ठीक है, ये थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ पड़ जाता है. ठीक है, आप ईस्ट ही मानोगे इसको. ठीक है, लिटिल बिट साउथ ईस्ट. देन वी हैव रोमानिया. उसके बाद हमारे पास आता है रोमानिया ओवर हेयर. अगैन इट इज़ टुवर्ड्स द वेस्ट ओनली, नॉर्थ वेस्ट कह लो या वेस्ट कह लो, इट इज़ टुवर्ड्स द वेस्ट. आप नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हो. देन वी हैव टर्की. यहाँ पर आप साउथ में देखोगे, एक्सट्रीम साउथ, वी हैव टर्की. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर आप याद रखना, बल्गेरिया इज इन दी वेस्ट. ठीक है, देन यूक्रेन अगैन इट इज़ इन दी नॉर्थ. देन रशिया इज इन द ईस्ट. Georgia again it is towards the south east. Romania is towards the north west. ठीक है, एंड टर्की इज इन दी साउथ. टर्की जो है वो आपके साउथ में है. इस तरीके से आप नोट डाउन कर लो, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द लोकेशन, द निमोनिक टू रिमेंबर द कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी. This is very important because why remembering the location is important, because location based questions are coming. Arrange the countries bordering or surrounding Black Sea from east to west, from south to north. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अरेंजमेंट. यू हैव टू रिमेंबर द अरेंजमेंट. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. इफ दिस निमोनिक इज क्लियर, ट्रिक is clear to remember the countries? Let me know in the comment section. So now coming on, we have understood the trick now. हमने trick पढ़ लिया है. We have understood the location. We have learned the trick also, location also. Now when we talk about Black Sea, it is also known as Euxine Sea. ये आपको याद रखना है. Another name for Black Sea is Euxine Sea. ठीक है, एंड इट इज़ अ मार्जिनल सी. मार्जिनल मीन्स एक छोटा सा सी है ये अटलांटिक ओशन का. इट इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अटलांटिक ओशन ओनली. ठीक है, ओवर हियर वी हैव द ब्लैक सी. नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज द ट्रिक टू रिमेंबर द कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी. क्या ट्रिक हमने पढ़ी थी ब्लैक सी की कंट्रीज को याद करने की? जल्दी से बताएं, व्हाट वाज द ट्रिक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट वाज, यस, इट वाज बर्गर टी. ठीक है, इट वाज बर्गर टी. यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, BURGRT. सो इट वॉज बर्गर टी. नाउ बी फॉर, बी का मतलब क्या था? बी फॉर, जल्दी से बताएं. बी फॉर, यस, बल्गेरिया. बी का मतलब था बल्गेरिया. यू फॉर, यूक्रेन. वेरी गुड. ठीक है, देन आर फॉर रशिया. वेरी गुड. जी फॉर, जी का मतलब क्या था? फटाफट से बताएं. जी फॉर, यस, जॉर्जिया. ठीक है, अगेन आर फॉर रोमानिया. वेरी गुड, एक्सीलेंट. एंड टी फॉर, टी अपना क्या था? टर्की. वेरी गुड, वी हैव टर्की ओवर हियर. ठीक है, अब याद हो गई कंट्रीज, भूलोगे तो नहीं. ठीक है, सो यू हैव रिमेंबर्ड, मेमोराइज द कंट्रीज. नाउ यू विल नेवर फॉरगेट देम इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग. अगर आप याद करते, रिवाइज करते रहो तो कभी नहीं भूलने वाले. ठीक है, सो दीज आर दी कंट्रीज विच आर सराउंडिंग ब्लैक सी. ये वो कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं, सराउंड करती हैं. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, जब हम बल्गेरिया की बात करते हैं, बल्गेरियाज लोकेशन इज इन, बताओ जल्दी से, बल्गेरिया की लोकेशन कहाँ पर है? वेयर इज बल्गेरिया लोकेटेड? यस, इट इज इन एक्सट्रीम वेस्ट. ओके, देन वेयर इज यूक्रेन लोकेटेड? यूक्रेन कहाँ पर है? यस नितिन, नॉर्थ. ठीक है, देन वेयर इज रशिया लोकेटेड? रशिया कहाँ पर लोकेटेड है? रशिया इज लोकेटेड इन, यस, ईस्ट. एंड देन वेयर इज जॉर्जिया लोकेटेड? जॉर्जिया कहाँ लोकेटेड है? यस, साउथ ईस्ट. रोमानिया इज इन, रोमानिया कहाँ पर है? यस, नॉर्थ वेस्ट. एंड टर्की इज इन, टर्की कहाँ पर है? साउथ. वेरी गुड. सो लोकेशन ऑल्सो सबको मेमोराइज हो गया, सबको याद हो गया. यू हैव मेमोराइज द लोकेशन एज वेल. सो इन द ब्लैक सी वी नो बर्गर टी, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की. बल्गेरिया इज इन दी वेस्ट, देन रशिया इज इन दी एक्सट्रीम ईस्ट. टॉप में नॉर्थ वी हैव यूक्रेन, साउथ वी हैव टर्की, देन साउथ ईस्ट जॉर्जिया, नॉर्थ वेस्ट रोमानिया. याद हो गया, बहुत ईजी था. ठीक है, इट वॉज वेरी ईजी. नाउ यू मस्ट हैव मेमोराइज्ड इट. चलो आगे बढ़ते हैं. इट वॉज वेरी ईजी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. वी हैव रिमेंबर्ड द नेम ऑफ ब्लैक सी. एक और हमने नाम याद रखा है ब्लैक सी का, एंड दैट इज नोन एज यूक्सीन सी. ब्लैक सी का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूक्सीन सी बोलते हैं. एंड ब्लैक सी इज द मार्जिनल वाटर बॉडी ऑफ विच ओशन? कौन से ओशन का मार्जिनल वाटर बॉडी है ये? मार्जिनल स्वरूप है
Yes, Atlantic Ocean, very good. It's a marginal sea of Atlantic Ocean, always remember, and it is in वेस्टर्न एशिया इन ईस्टर्न यूरोप, ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है. इट इज़ बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया. नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ नोन एज ब्लैक सी. वाई इसको ब्लैक सी क्यों बोलते हैं? ऑल्सो इट इज़ नॉट लाइक्ड बाय मेनी पीपल, बहुत लोग इसको पसंद नहीं करते. इट इज़ नोन एज वेरी इनहॉस्पिटेबल सी, बहुत ही ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल सी माना जाता है. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी टफ टू ट्रैवल थ्रू ब्लैक सी विद प्रॉपर नेविगेशन, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर बॉडी है ना, यहाँ पर काफ़ी खतरनाक ट्राइब्स रहती हैं, बसती हैं. देर आर मैनी डेंजरस ट्राइब्स हु आर लिविंग अराउंड द आइलैंड्स ऑफ ब्लैक सी. दे आर वेरी वेरी डेंजरस. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सेंटिनलीज ट्राइब है ना अंडमान के आसपास, ठीक है. इन दी अंडमान वी हैव द सेंटिनलीज ट्राइब, दे आर वेरी डेंजरस, ठीक है. तो अगर वहाँ जाकर वापस जिंदा आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है. इफ़ यू गो टू द सेंटिनलीज ट्राइब एंड यू नो come back alive, that is a good luck, that is considered as a very good luck, right? So there are many dangerous tribes who are living around the islands of Black Sea. Black Sea के islands के आसपास काफ़ी dangerous tribes हैं. So that is why it is considered as the inhospitable body of water. इसको काफ़ी इनहॉस्पिटेबल माना जाता है, यानी कि यहाँ पहुँचकर प्रॉपर नेविगेशन के साथ वापस आना बड़ी मुश्किल वाली बात है, ठीक है. सेकेंड रीजन इज वाई इट इज नोन एज इनहॉस्पिटेबल सी, बिकॉज ऑफ द एनॉक्सिक नेचर ऑफ वाटर. यहाँ पर जो पानी का नेचर है वो एनॉक्सिक है. आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास व्हाट इज एनॉक्सिक. व्हेन इन द वाटर देयर इज नो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है. जब वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होता, घुला हुआ ऑक्सीजन नहीं होता, वो एनॉक्सिक वाटर बॉडी होती है. वे in that water body the ecological disturbance is seen. उस वाटर बॉडी में आप देखोगे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रहता ही है. द इकोलॉजी इज नॉट वेरी गुड इन सच काइंड ऑफ वाटर वेयर देर इज नो वाटर, नो ऑक्सीजन, ठीक है. सो हेयर द डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो. सो इफ देर इज एनी शिप रेक, अगर कोई मान लो डूबी हुई शिप है इस वाटर बॉडी में, वो रस्ट नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं है, देर इज नो ऑक्सीजन. So the ships or the you can say submarines which are submerged down the Black Sea, they are not rusting over here, they are not decomposing. तो वहाँ पर आप देखोगे intact materials, even the human skeleton is intact. जो भी लोग wars वगैरह हुए हैं, लोग मरे हैं पानी की वाटर बॉडी के तले में, आपको हड्डियाँ मिली हैं, वहाँ पर आपको देखोगे कि हड्डियाँ भी ख़त्म नहीं हुई है, डिकम्पोज नहीं हुई है, इंटैक्ट है, एज इट इज़ हैं, ठीक है. सो इन द लोअर वाटर लेयर्स द वाटर इज एनॉक्सिक, दैट इज वाई द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो. सो देर आर वेरी स्कैरी रूमर्स अबाउट दिस ब्लैक सी. इस ब्लैक सी के बारे में ना काफ़ी खतरनाक रूमर्स फैलाए हुए हैं, ठीक है, कि ये काला पानी है, यहाँ पर कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिकम्पोज नहीं होने देती हैं, इंटैक्ट रहती हैं. डीप लेवल पर वाटर लेयर में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव चीज़ें छुपी हुई हैं, छुपाई हुई हैं, 2000 साल पुरानी चीज़ें. तो ऐसे दीज आर द र्यूमर्स, ठीक है. अगर जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ टेढ़ी खीर पक रही है, वहाँ पर र्यूमर्स फैला ही देते हैं, अफवाहें फैल ही जाती हैं, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ब्लैक सी. फर्स्ट इट इज़ यूक्सीन सी, इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ एटलांटिक ओशन, देन इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, इट इज़ इनहॉस्पिटेबल सी एंड द वाटर इज एनॉक्सिक. अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. Now moving ahead, आगे बढ़ते हैं. Now we are going to understand some 6 amazing facts about Black Sea. Black Sea के बारे में कुछ 6 amazing facts हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. Next question, next important point. Now the geography and location, where is Black Sea located? That we have understood. ये आपका located है Western Asia और Eastern Europe के बीच में. We have understood the location. We know that it is connecting Mediterranean Sea through the Bosphorus Strait. Last class में I told you that this is the Bosphorus Strait. Bosphorus Strait के through ये Mediterranean Ocean को, sea को connect करती है, ठीक है. And these seas, these oceans, they are used for trade purpose. We travel through oceans, we travel through seas. यहाँ पर कोई रहता नहीं आकर, nobody is living in these oceans and seas. Okay, they are used for trading purpose. Black Sea का पानी थोड़ी कोई पी रहा है, ये तो trading purpose के लिए है. If Ukraine wants to go to Turkey, it can travel through Black Sea, ठीक है. If Georgia wants to go to Romania, it can travel through Black Sea. So it is for trading purpose. Plus, if there are some drill navigation exercises which have to be conducted, it is conducted through oceans, through seas only. कोई navigation एक्सरसाइज होती है, कोई ड्रिल एक्टिविटी होती है नेवी की, वो कहाँ होती है? ओशंस और सीज में ही तो प्रैक्टिस होती है ना, ठीक है. सो दीज सीज एंड ओशंस, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज,
ठीक है, और एल्स हाउ यू थिंक यूक्रेन विल गो टू टर्की। मान लो यूक्रेन का जो रिश्ता है रशिया के साथ अच्छा नहीं है, यूक्रेन्स रिलेशन विद रशिया एंड विद जॉर्जिया इज नॉट गुड, सो यूक्रेन एंड लेट्स से दैट रोमानिया और बल्गेरिया के साथ भी रिश्ता थोड़ा खराब है, तो यूक्रेन कैसे टर्की तक पहुंचेगा, ऑब्वियसली ब्लैक सी के थ्रू पहुंच जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। वी हैव अंडरस्टूड द स्ट्रेट्स ऑल्सो, सी ऑफ मार्मरा हमने पढ़ा था, डैंडेनली स्ट्रेट पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, दीज आर द स्मॉल चैनल्स विच आर कनेक्टिंग द ब्लैक सी विद द अदर वाटर बॉडीज। बाकी की जो वाटर बॉडीज हैं उनको ये स्ट्रेट्स और चैनल्स के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई द ब्लैक सी इज नोन एज ब्लैक सी। इसका नाम ब्लैक क्यों पड़ा भाई, व्हाट इज द रीजन वाई इट इज नोन एज ब्लैक? Because first of all, one of the best and little known Black Sea fact is the origin of its name. Now it is very unclear. There are many theories, ठीक है, which prove that Black Sea is known as black because of its anoxic water or because of the inhospitable nature of the sea. People call it black क्योंकि इसका जो inhospitable nature है, ठीक है, यहाँ पर आप navigation properly नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर पास्ट में काफ़ी र्यूमर्स फैले हुए हैं, काफ़ी डरावनी सी है, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक रख दिया। सो देर आर मैनी रीजन्स फॉर दैट, ठीक है, काफ़ी सारे रीजन्स हैं, देर इज़ नो वन रीजन। सो द रियल रीजन वाई इट इज़ नोन एज ब्लैक इज़ नॉट क्लियर। साइंटिफिकली इट इज़ सेड बिकॉज ऑफ इट्स एनॉक्सिक वाटर, ठीक है, इट इज़ नोन एज ब्लैक सी। येट्स आप बोल सकते हो एक रेशियल रिमार्क भी है इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, इसके नेचर के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज इट्स अ स्कैरी काइंड ऑफ ओशन फॉर मैनी पीपल। काफ़ी लोगों के लिए बहुत स्कैरी सी है ये, ठीक है, लोग यहाँ पर गए हैं, काफ़ी बार गुम गए हैं, ठीक है, खो गए हैं, या ट्राइब्स बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना डर फैला रखा है, तो इस वजह से इसको ब्लैक सी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इनहॉस्पिटेबल नेचर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ इट्स एनॉक्सिक वाटर इज देयर एनी लाइफ इन द ब्लैक सी? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लाइफ होगा? एनी काइंड ऑफ इकोलॉजिकल लाइफ can prevail in Black Sea? See, we know that there is absence of oxygen in the water, that is why it is known as anoxic water. ठीक है, अगर हम यहाँ पर इकोलॉजिकल लाइफ की बात करें, इट इज़ वेरी टफ, ठीक है, काफ़ी टफ है कि यहाँ पर आप लाइफ देखोगे, दैट मीन्स ग्रीनरी या अंडर वाटर प्लांट्स को देखोगे। इट्स वेरी टफ टू फाइंड द अंडर वाटर प्लांट्स in the Black Sea. So you can say that life in Black Sea is inactive. Life does not mean the human life. By life I mean the plant life, the underwater plants. ठीक है, underwater जो plants होते हैं वो बहुत inactive है यहाँ पर ecological balance because of absence of oxygen. ठीक है, now the next important point is, यहाँ पर अगर हम एक और important point देखें, everybody can see this map. यहाँ पर सभी बच्चों को ये map visible है ना? Please let me know. In Turkey we have Mount Arat. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, ये प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की में हमारे पास एक माउंटेन है दैट इज नोन एज माउंट अराट। ठीक है, दिस इज द माउंटेन, रिमेंबर इन विच कंट्री इट इज प्रेजेंट, इट इज इन टर्की। नाउ देर इज अ वेरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माउंट अराट एंड ब्लैक सी। ब्लैक सी और माउंट अराट का एक बहुत ही हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। इट इज सेड दैट इन बाइबल देर आर स्टोरीज अबाउट द आर्क ऑफ नोआ। बाइबल में स्टोरी है आर्क ऑफ नोआ के बारे में, जस्ट लाइक इन हिंदुइज्म देयर इज अ स्टोरी ऑफ मनु, राइट? हिंदुइज्म में मनु राजा की स्टोरी है ना, दैट ही कैरिड ऑल दी 7 सप्त ऋषिज एंड ऑल दी वाइल्ड लाइफ विद हिम इन अ बिग शिप, राइट? एक बड़ी सी शिप में उन्होंने सारे वाइल्ड लाइफ, सभी पशु पक्षी, सप्त ऋषियों को कैरी किया था, राइट? एंड देन अ न्यू सिविलाइजेशन गॉट स्टैब्लिश्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, राइट? दिस इज अ स्टोरी इन हिंदुइज्म। Similarly in Christianity also there is a story about Noah. ठीक है, so ark of Noah means the ship of Noah. So it is said that on the orders of Jesus Christ he carried all the wildlife, all the important people means the sages, all the important priests on his ship, right, to establish a new human life, to establish or start a new human civilization. Okay, so it is said that the ark of Noah stopped in the Black Sea only. Black Sea के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ पर माउंट अराट पे आके रुका था, दिस आर्क ऑफ नोआ, द शिप ऑफ नोआ। ठीक है, तो ये जो शिप है ब्लैक सी को क्रॉस करके माउंट अराट पर आकर रुका गया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिस इज द स्टोरी, ये आपकी स्टोरी है इन द बाइबल में ये स्टोरी लिखी जाती है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट ब्लैक सी एंड माउंट अराट आर लिंक्ड टुगेदर। इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक सी और माउंट अराट जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है,
पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? सो ब्लैक सी इज ऑल्सो हैज अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डरावनी सी है. इट इज नॉट दैट इट्स अ स्कैरी सी, इट ऑल्सो हैज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है. नाउ एवरीबडी कैन लुक एट दिस पिक्चर. सभी को ये इमेज दिख रही है. सो हियर इट इज सेड दैट देयर इज अ स्टडी वाटर लेवल इन ब्लैक सी. यानी कि आप बाकी सी और ओशन से कंपेयर करो, इट इज़ वेरी इजी टू स्विम ओवर हेयर. यहाँ पर स्विम करना, बिकॉज इट कैन handle your body weight also. So water level in the Black Sea remains same all the time. जो water level है वो same रहता है. Why the water level is same in Black Sea? In other water bodies the level goes up and down. Why? Because here there are no high tides or low tides. यहाँ पर ना कोई high tide है ना low tide है. ठीक है. ओवरऑल इन अदर ओशंस एंड सीज यू विल फाइंड हाई टाइड एंड लो टाइड. बाकी के ओशंस और सीज में आपको हाई टाइड लो टाइड दिखेगा. ठीक है. बट हेयर वी डू नॉट हैव हाई टाइड और लो टाइड. सो देर इज नो फ्लक्चुएशन. जब ऊंची नीची लहरें ही नहीं है तो फ्लक्चुएशन नहीं है पानी में, वाटर लेवल सेम है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्विम ओवर हेयर. यहाँ पर स्विम करना बहुत ईजी है. इट इज़ पॉसिबल टू स्विम ओवर हेयर बिकॉज इट हैज़ क्लीन फ्रेश वाटर सरफेस. ठीक है. फ्रेश वाटर सरफेस बिल्कुल क्लीन है, प्लस देर इज नो हाई टाइड लो टाइड. सो यू कैन वेरी इजीली स्विम ओवर हेयर. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? ठीक है. सो दीज आर द स्ट्रेंज फीचर्स. वाई? बिकॉज देर आर हाई लेवल ऑफ मिनरल्स. हाई टाइड लो टाइड क्यों नहीं होता है यहाँ पर? यहाँ मिनरल्स की जो उपस्थिति है वो बहुत हाई है, प्लस सैलिनिटी इज वेरी हाई. ठीक है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट. ठीक है. इट इज़ वेरी इजी टू फ्लोट ऑन द वाटर. ठीक है. पानी के तले पे आप आराम से फ्लोट कर सकते हो, बह सकते हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि मिनरल्स और सॉल्ट की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, बिकॉज ऑफ विच आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही एक तरीके से आप बोल सकते हो लीफ जैसे, बॉडी वेट जो है वो लीफ जैसा लगता है इस सी को. ठीक है. पॉइंट क्लियर? येस. डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस. ठीक है. अभी पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? नाउ देर आर सर्टन क्रीपी रूमर्स अबाउट ब्लैक सी. ब्लैक सी के बारे में कुछ ऐसे रूमर्स हैं, बिकॉज वी हैव फाउंड 2500 ईयर्स ओल्ड शिपरेक. ये जो आप शिपरेक देख रहे हो ना, इट इज इंटैक्ट. आप देख रहे हो इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है. देर इज नो काइंड ऑफ रस्टिंग इन दिस शिपरेक. राइट. शिपरेक मतलब जो टूटी हुई शिप होती है वॉर वगैरह में, वो डूब जाती है, तो आप देखोगे देर इज नो रस्टिंग. प्लस देर आर मेनी हिडन जूल्स, मेनी ह्यूमन स्केलेटन्स विच हैव बीन फाउंड. काफ़ी ह्यूमन स्केलेटन्स, इंसानों की हड्डियां पाई गई हैं. ठीक है. तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी क्रीपी टू डाइव अंडर वाटर. ब्लैक सी में अंडर वाटर डाइव करना काफ़ी डरावना माना जाता है. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर. नाउ द इम्पॉर्टेंट सी दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर इज कैस्पियन सी. अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रीज अराउंड द कैस्पियन सी. You can remember the mnemonic is तारीख. देखो तारीख का मतलब, तारीख इज अ हिंदी वर्ड विच मीन्स, ठीक है, तारीख जो होता है वो हिंदी वर्ड है और इसका मतलब होता है डेट. ठीक है. सो ओवर हियर तारीख जो है इट्स अ हिंदी वर्ड, इसका मतलब होता है डेट. ठीक है. सो यू कैन रिमेंबर तारीख. आप तारीख याद रख सकते हो. हाउ यू हैव टू रिमेंबर द बॉर्डरिंग कंट्रीज. नाउ इन द कैस्पियन सी वी हैव तुर्कमेनिस्तान. टी फॉर तुर्कमेनिस्तान. देन ए फॉर अजरबैजान. यहाँ पर आप देखोगे वी हैव तुर्कमेनिस्तान ओवर हेयर. देन वी हैव अजरबैजान. यहाँ पर आप देखोगे दिस इज अजरबैजान. देन आर फॉर रशिया. आर से हमारा रशिया हो जाता है. हेयर वी हैव द रशिया. देन आई फॉर ईरान. दिस इज ईरान. एंड के फॉर काजाकिस्तान. दिस इज ओवर हेयर. So these are the countries which are surrounding or bordering the Caspian Sea. If we look at Turkmenistan, it is in the extreme east. यहाँ पर आपके तुर्कमेनिस्तान ईस्ट में है. Then extreme west we have Azerbaijan. ठीक है. वेस्ट में आपके पास अजरबैजान है. Extreme south we have Iran. ओके. एंड टूवर्ड्स द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ में कह सकते हो, यू कैन कॉल इट इन द नॉर्थ, वी हैव काजाकिस्तान. एंड टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट वी हैव, नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास रशिया है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. इन द एक्सट्रीम ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, एक्सट्रीम वेस्ट अजरबैजान, देन एक्सट्रीम नॉर्थ काजाकिस्तान, एक्सट्रीम साउथ ईरान एंड नॉर्थ वेस्ट रशिया. ठीक है. तारीख सबको याद रहेगा. तारीख मीन्स तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, काजाकिस्तान. दैट इज तारीख. ठीक है. चलो छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. जल्दी से बताओ. तारीख is the trick to remember the Caspian Sea countries. Now let me know the full form of तारीख. T for, T का मतलब क्या होगा? Yes, very good. It is तुर्कमेनिस्तान. तुर्कमेनिस्तान is located in which side? कहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान? फटाफट से बताएं. It is located in extreme east. Very good. A for, A का मतलब क्या हो जाएगा?
यस, अजरबैजान, ए का मतलब हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान इज एक्सट्रीम, कहाँ पर है, वेस्ट, वेरी गुड, इधर देख लो, ठीक है, अजरबैजान इज एक्सट्रीम वेस्ट, तुर्कमेनिस्तान इज एक्सट्रीम ईस्ट। नाउ आर का मतलब क्या हो जाएगा इधर, आर मीन्स रशिया, रशिया इज इन, कहाँ पर है रशिया, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड। नाउ आई फॉर, आई का मतलब क्या हो जाएगा, यस, ईरान, इट इज नॉट इराक, इट इज ईरान, ईरान इज इन, कहाँ पर है ईरान, जल्दी से बताएं, यस, इट इज इन साउथ। एंड देन के फॉर, के का मतलब क्या है, यस, इट इज काजकिस्तान, ये है आपका काजकिस्तान एंड इट इज इन नॉर्थ, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को कैस्पियन सी के बारे में, एवरीबडी विल रिमेंबर द कैस्पियन सी कंट्रीज नाउ, ठीक है। नाउ कैस्पियन सी, इट इज सेड दैट इट इज नोन एज इंडोरिक बेसिन, कैस्पियन सी जो है इसका जो होता है वो इंडोरिक बेसिन होता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडोरिक, ठीक है, इंडोरिक बेसिन का मतलब क्या होता है, राइट इट डाउन, इसको प्लीज लिख लीजिए, दैट इंडोरिक बेसिन इट इज अ ड्रेनेज बेसिन, ये एक तरीके का ड्रेनेज बेसिन होता है, दैट नॉर्मली रिटेन्स वाटर, यानी कि यहाँ से वाटर का आउटफ्लो नहीं होता, इट्स अ ड्रेनेज बेसिन विच नॉर्मली रिटेन्स द वाटर एंड अलाउज no outflow to other external bodies of water, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। So endoric basin is a basin, it's a drainage basin that normally retains water, that means it allows no outflow of water, यहाँ से पानी निकलकर और किसी रिवर या ओशन में नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे it is locked, ठीक है, over here you will find that this is locked, यहाँ से पानी बाहर escape नहीं हो रहा है, water is not escaping, it is landlocked, so that is why we call it an endoric basin, इसलिए हम इसको एक endoric basin बोलते हैं, because it is not allowing water to seep out, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा वाटर को ये, ठीक है। एंडोरिक बेसिन समझ आ गया सभी को, तो जल्दी से बताएं, इफ यू हैव अंडरस्टूड द एंडोरिक बेसिन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। सो ओवर हियर यू विल फाइंड, यहाँ पर आप देखोगे दैट कैस्पियन सी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, व्हाई आई एम सेइंग इनलैंड, बिकॉज इट इज लैंड लॉक्ड। मैं इनलैंड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, इनलैंड वाटर बॉडी है, इट इज नॉट अलाउइंग वाटर टू सीप आउट, बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। सो इट्स एन इंडोरिक बेसिन विच इज बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है, एंड द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग इट, यू कैन रिमेंबर देम थ्रू दिस ट्रिक दैट इज नोन एज तारीख, ठीक है, आप तारीख ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई इट इज इन न्यूज, एक और पॉइंट आता है कि ये न्यूज में क्यों है, वाई Caspian Sea has been in news, because it is said that by the end of the century Caspian Sea will be 9 meters to 18 meters lower, इसका जो डेप्थ है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है, द डेप्थ ऑफ कैस्पियन सी इज वेरी वेरी बिग, वेरी ह्यूज, यू कैन से द डेप्थ ऑफ द कैस्पियन सी इज इट इज ड्रॉपिंग 7 सेंटीमीटर एवरी ईयर, ठीक है, हर साल 7 सेंटीमीटर इसका डेप्थ और इसकी जो टेरिटरीज है वो खत्म हो रही हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर। Now when we talk about the consensus over Caspian Sea, what are the fights which are going on over the Caspian Sea? Caspian Sea के ऊपर किस तरीके की fights चल रही हैं? So over here the 5 Caspian Sea states that we have studied through तारीख, हमने तारीख के थ्रू पढ़ा है 5 Caspian Sea states, ठीक है, they have reached a breakthrough, यहाँ पर क्या है, नेविगेशन को लेकर एक तरीके का डील साइन किया गया है, ठीक है, वाई, बिकॉज दिस सी इज रिच इन ऑयल, गैस एंड केवियर, ये जो सी है ये ऑयल, गैस और जो फिश ऑयल पाया जाता है केवियर उसमें बहुत रिच है, ठीक है। सो टू एक्सप्लोर दैट ऑयल, टू एक्सट्रैक्ट दैट ऑयल, कंट्रीज हैव साइंड अ डील, यहाँ पर सभी मेंबर्स ने, ऑल दीज मेंबर कंट्रीज दे हैव साइंड अ डील, ठीक है, वाई, टू कंसेंससली टुगेदर यूनिफाइड इन अ यूनिफाइड मैनर टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट दैट ऑयल, आपस में मिलकर ये लोग बिना लड़ाई झगड़ा किए उस अग्रीमेंट के थ्रू यहाँ से पानी, यहाँ से जो ऑयल है वो निकालेंगे, ठीक है। नाउ हियर अजरबैजान, यहाँ पर जब अजरबैजान को देखोगे, दिस इज अ कंट्री विच इज गेटिंग अ लिटिल सेल्फिश, ठीक है, इन दिस अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट में अजरबैजान जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है। व्हाट इज द काइंड ऑफ सेल्फिशनेस दैट इट इज शोइंग, दैट इट इज रिस्ट्रिक्टिंग तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, ठीक है, इन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। अब देखो ईरान को ये बोल रहा है आप तो वैसे ही ऑयल रिच कंट्री हो, आपको क्या जरूरत है, ठीक है, यू आर ऑलरेडी, यू हैव
sufficient reserves in your nation. Why do you want to extract more oil from Caspian Sea? So Azerbaijan basically is trying to dominate the Caspian Sea, and also any other country if it is trying to explore the Caspian Sea, Azerbaijan tries to stop it. Azerbaijan क्या करने की कोशिश करता है, कोई और कंट्री भी अगर एक्सप्लोर करने आए कैस्पियन सी में उसको रोकने की कोशिश करता है. दैट इज वाई अजरबाईजान इज इन कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ विद नॉट ओनली ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान बट ऑल्सो विद अर्मेनिया. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है. वाई? बिकॉज कैस्पियन सी इज ह्यूज एनर्जी रिजर्व, एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एनर्जी रिजर्व है कैस्पियन सी में. और आप देखोगे कोई ना कोई एक कंट्री ऐसी आती है जो डोमिनेट करने की कोशिश करती है, जस्ट लाइक चाइना इज डोमिनेटिंग इट साउथ चाइना सी. येस और नो, जल्दी से बताओ. चाइना भी क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है. ऑलवेज देर इज वन और द अदर कंट्री विच ट्राइज टू डोमिनेट द वाटर बॉडीज, जो कि वाटर बॉडी को डोमिनेट करने की कोशिश करती है. एक कंट्री तो होती ही है. ठीक है. Now the next important mnemonic that we are going to remember. Now the next important mnemonic that we are going to remember is Horn of Africa. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे in this over here, यहाँ पर आप देखोगे this is Horn of Africa. ठीक है, अफ्रीका ये जो कॉन्टिनेंट है आप यहाँ देखोगे वी हैव दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली बिकॉज आवर प्रेसिडेंट हैज वेंट in 2017 to Horn of Africa to establish firm relationships between India and the कंट्रीज विच आर लाइंग इन दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका. हमारे प्रेसिडेंट जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जितनी कंट्रीज है सबको विजिट किया था इन्होंने. 4 कंट्रीज आर देयर, ही विजिटेड ऑल द 4 कंट्रीज. एंड प्लस कल्चरली ऑल्सो अफ्रीका एंड इंडिया आर रिलेटेड. कल्चरली भी अगर आप देखो तो अफ्रीका इंडिया रिलेटेड है. ऑन द रिलीजियस लाइन्स ऑल्सो अफ्रीका एंड इंडिया आर रिलेटेड बिकॉज देर आर मेनी टेम्पल्स ऑफ गॉडेस काली, गॉडेस दुर्गा, इवन साईं बाबा विच हैव बीन स्टैब्लिश्ड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्पेशली सोमालिया, देर आर मेनी countries in Horn of Africa, Djibouti, where the Hindu goddess and gods, their temples have been established. So culturally also we are linked together. Then we have given them medical assistance also. हमने वहाँ पर hospitals भी खुलवाए हैं. India has also given them the medical assistance. So we are geopolitically connected. ठीक है. So the trick to remember the Horn of Africa countries is seed. जो trick है ना याद करने की वो है seed. ठीक है. For seed we will remember we have S for Somalia. S से हमारे पास सोमालिया हो जाता है. देन इथियोपिया फॉर ई. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज इथियोपिया. ठीक है. देन ओवर हियर देन अगेन ई दैट इज रिट्रिया. ठीक है. एंड देन जी इज जिबाउती. तो आप यहाँ पर देखोगे ओवर हियर वी हैव दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. अब इसको हॉर्न क्यों कहा जाता है? कॉमन सेंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप. ठीक है, हॉर्न जैसा शेप है ना, जैसे राइनोसिरोस के ऊपर हॉर्न होता है फेस पर, just like we have a horn over the face of rhinoceros, right? Because of horn like projection it is known as Horn of Africa. ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं आई? So now the trick is clear. सबने याद कर लिया. Everybody has memorized the trick of Horn of Africa. Seed, Somalia, Ethiopia, Eritrea and Djibouti. ठीक है, याद रहेगा सभी को. So we have understood the geopolitical significance also. हमने इसका geopolitical significance भी याद कर लिया है. Now the next important point. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ओशंस, हाउ टू रिमेंबर द ओशंस. वेरी इजी ट्रिक. ओशंस याद करने की तो ट्रिक काफ़ी इजी है. इट इज़ पैसा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी ओशंस. ओशंस के लिए ट्रिक है पैसा. ठीक है. नाउ पैसा मीन्स P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर अंटार्कटिक ओशन, दैट इज अ सर्दर्न ओशन, एंड A फॉर आर्कटिक ओशन. यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड. यहाँ पर आप देखोगे P फॉर पैसिफिक ओशन. ठीक है, पैसिफिक ओशन हो गया जहाँ पर एल नीनो इफेक्ट आप पढ़ते हो, वेयर यू स्टडी द एल नीनो इफेक्ट. ओके, देन वी हैव द अटलांटिक ओशन, देन वी हैव द इंडियन ओशन in the south of India, then we have the Antarctic Ocean. अब जो Antarctic Ocean होता है आपका, Antarctic Ocean is the southern ocean. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे. And then we have the Arctic Ocean in the north. ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया याद रखने का. ओशंस, पैसा आर दी ओशंस. ठीक है, चलो अब रेड सी की बात करते हैं. लेट्स स्टडी द ट्रिक टू रिमेंबर रेड सी. रेड सी, द कंट्रीज नियर द रेड सी. वी हैव स्टडीड अबाउट रेड सी इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. हमने लास्ट क्लास में रेड सी पढ़ा था. ठीक है, सबको याद होगा. चलो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेड, नाउ कमिंग बैक टू रेड सी पर आते हैं. हियर द ट्रिक टू रिमेंबर द कंट्रीज इज डेसी. यहाँ पर जो ट्रिक है ना कंट्रीज को समझने का वो है डेसी. डेसी मीन्स, डेसी का मतलब क्या होगा? देखो इधर देखो,
वी हैव जिबाउती, ये हो गया आपका जिबाउती, ये छोटी सी कंट्री जो दिख रही है, द स्मॉल लिटिल कंट्री, इट इज जिबाउती, ठीक है। जिबाउती इज इन, कहाँ पर है जिबाउती? इट इज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, याद रखना इसको, ठीक है। सो नाउ वी हैव जिबाउती ओवर हियर, देन वी हैव रिट्रिया, यहाँ पर हमारे पास रिट्रिया हो जाता है, दिस येलोइश नेशन इज रिट्रिया, अगेन रिट्रिया इज इन, इट इज ऑल्सो इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। देन वी हैव सऊदी अरेबिया, ये देखो बड़ा सा नेशन यहाँ पर दिख रहा है रेडिश, दैट इज सऊदी अरेबिया। देन वी हैव सुडान, अगेन सुडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। एंड देन वी हैव इजिप्ट ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास इजिप्ट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर दी कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग द रेड सी, ये कंट्रीज हैं जो कि रेड सी को बॉर्डर करती है। अब देखो इजराइल यहाँ पर है, इट इज नॉट बॉर्डरिंग द रेड सी, इट इज लिंक्ड विद इजिप्ट, ये इजिप्ट से चिपका हुआ नेशन है, ये रेड सी को बॉर्डर शेयर नहीं करता बॉर्डर। इवन जॉर्डन, इट इज सेड दैट सम पार्ट ऑफ जॉर्डन इज लाइंग इन रेड सी, इट इज टचिंग बॉर्डर्स विद रेड सी, बट स्टिल वी डू नॉट कंसिडर इट एज द कंट्री टचिंग बॉर्डर्स विद रेड सी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। देन वी हैव येमेन, वाई से क्या हो जाएगा हमारे पास? येमेन हो जाएगा, डेसी में जो लास्ट में वाई है इससे हमारे पास आएगा येमेन, ठीक है। सो दीज आर द नेशंस विच आर शेयरिंग बॉर्डर विद द रेड सी। यहाँ पर पॉइंट क्लियर है, डेसी याद रहेगा सभी को, ऑल ऑफ यू विल बी रिमेंबरिंग डेसी नाउ, ठीक है। चलो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, लेट्स टेक अ टेस्ट। चलो, द कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी, ट्रिक हमने क्या याद किया है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द ट्रिक दैट वी हैव मेमोराइज्ड? लेट मी नो जल्दी से फटाफट। यस, वी हैव डेस ई, ठीक है। तो डेसी में डी स्टैंड्स फॉर, डी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ? यस, इट मीन्स जिबाउती, इसका मतलब है जिबाउती। ई स्टैंड्स फॉर, यस, रिट्रिया, ठीक है। अगेन एस स्टैंड्स फॉर, एस का मतलब क्या हो जाएगा? यस, सऊदी अरेबिया। अगेन एस स्टैंड्स फॉर सुडान, वेरी गुड। देन अगेन ई स्टैंड्स फॉर, एक और ई आ गया यहाँ पर, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पर क्या है? इजिप्ट, ठीक है। एंड द लास्ट वाई स्टैंड्स फॉर, वाई का मतलब यस, येमेन, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज डेसी विच कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनमें से कौन सी कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, जल्दी से बताएं। विच कंट्रीज लाई इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका? यस, जिबाउती, देन वी हैव सुडान, देन वी हैव रिट्रिया, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? सो दीज आर द ट्रिक्स टू रिमेंबर रेड सी, और आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी याद हो गया। नाउ यू हैव मेमोराइज्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड रेड सी, हमने रेड सी पढ़ लिया। नाउ कमिंग ऑन, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द ट्रिक टू रिमेंबर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की कुछ लेक्स हैं जिनका हमें नाम याद रखना है, ठीक है। द ट्रिक इज होम्स, जो ट्रिक है याद रखने का दैट इज होम्स। एच फॉर लेक हुरॉन, एल मीन्स लेक, ओके। देन आपका इधर हो जाएगा, ओवर हियर यू विल रिमेंबर ओ फॉर लेक ओंटारियो, एम फॉर लेक मिशिगन, ई फॉर लेक एरी एंड एस फॉर लेक सुपीरियर। यहाँ पर सभी को लेक्स दिख रही है कि नहीं दिख रही, जल्दी से बताओ। कैन यू सी दीज लेक्स इन द मैप? मैप इज विजिबल टू एवरीवन। दिस इज लेक हुरॉन, ये है आपका लेक हुरॉन। एंड लेक हुरॉन के आपके साउथ में क्या है? टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ लेक हुरॉन वी हैव लेक एरी, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन नॉर्थ अमेरिका टुवर्ड्स दी साउथ ऑफ लेक हुरॉन वी हैव लेक एरी, ठीक है। देन वी हैव लेक ओंटारियो, ओंटारियो कॉन्टिनेंट के पास है, इट इज इन दी नियर दी ओंटारियो कॉन्टिनेंट। देन वी हैव लेक मिशिगन, फिर हमारे पास लेक मिशिगन आती है, एंड दिस इज लेक सुपीरियर। सो व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका? कौन सी ट्रिक है लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका? वेरी गुड, इट इज होम्स, ठीक है। होम्स का मतलब, एच का मतलब क्या होगा? एच इज लेक हुरॉन, ठीक है। देन ओ इज, ओ का मतलब क्या है? लेक ओंटारियो, वेरी गुड, ठीक है। देन एम इज, एम का मतलब क्या होगा? लेक मिशिगन, वेरी गुड, दिस इज लेक मिशिगन। ई मीन्स लेक, ई का मतलब कौन सी लेक है? लेक एरी, वेरी गुड। एंड एस मीन्स, एस का मतलब क्या है? एस मीन्स यस, लेक सुपीरियर, हो गया याद सभी को। एंड दीज आर द लेक्स इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? कहां पर है ये इंपॉर्टेंट लेक्स? दे आर इन दी नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड। तो याद हो गया ना सभी को? इट वॉज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दीज लेक्स, काफी इजी था इनको याद रखना, ठीक है। ओके, कोई टफ तो नहीं था। सो
This was the important mnemonics class. ये था आपकी important mnemonics class. Also, if you wish to subscribe to Unacademy Plus, get 10% discount by using the code Sharma20. ये code use करके 10% discount मिल सकता है. Thank you everyone for participating in the class. It was a wonderful session with all of you. Thank you.